Hi everyone, welcome back to Nuskrit. So in the last video we discussed about the API response and the request, the base URL and the other components of the of our design of file service. In this video we'll talk about the design evaluation and the latency budget. So in this video we'll talk about the evaluation of the non-functional requirements, right? That whatever design we have made, how many number of non-functional requirement is being filled. So we discussed about non-functional requirements, right, in our first video. So we will see that whether our design is fulfilling all those non-functional requirements or not. After that, we will actually talk about latency budget. Latency budget means like we will try to find out like what is the response and request time of uploading a file or maybe downloading a file, and then we will see some of the optimization and then trade-offs, right? So let's get started with the introduction. So these are the things that we are going to cover in this video. So first of all, we will be looking at non-functional requirements. We will see reliability, security, scalability, availability, and low latency. Then we will actually talk about latency budget. Like if we are going to upload a request, like if I are going to upload a file, then while uploading a file, how much response and request size will be there and how much response time will be there. In a similar fashion, we will talk about download request, and then we will talk about optimizations and some trade-offs. So let's get started with the reliability. That is the first non-functional requirement. So guys, reliability, like you just understand this. Reliability का मतलब है कि अगर कोई यूजर कुछ भी हमारे प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर रहा है तो उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट? प्रॉब्लम इन द सेंस कि से फॉर एग्जांपल उसने कुछ रिक्वेस्ट हिट किया तो वो रिक्वेस्ट इन एनी केस फेल नहीं होना चाहिए, राइट? दैट इज वेयर वी कॉल आवर सिस्टम टू बी रिलायबल, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत बार देखते हो, लेट्स से यू आर हेडिंग टू leetcode.com, राइट? सो मे बी समटाइम ऐसा हो सकता है कि आपको उसने कुछ इंटरनल सर्वर एरर या फिर कुछ और इस तरह की एरर दे दी, राइट? या आपने देखा होगा बहुत बार कि व्हेन यू एक्चुअली हिट amazon.com, है ना, ई कॉमर्स वेबसाइट, तो मे बी amazon.in. सो व्हाट हैपन्स देयर इज दैट बहुत बार ऐसा होता है कि वो रिक्वेस्ट फेल होकर के वहाँ पे एक डॉग की फोटो आ जाती है विच एक्चुअली टेल्स यू लाइक गो टू होम, गो बैक टू होम करके वहाँ पे लिंक आता है. तो ये सब चीज़ें अ यूजर डोंट वांट. So for that, reliability is one of the most important topic. And when we actually talk about reliability, तो how we can actually achieve the reliability, तो समझते हैं. देखो, हमारे सिस्टम के अंदर जितने भी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर्स थे, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर्स, उनको हमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं बनाना है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका यूजर सर्वर, ठीक है, यूजर सर्वर अगर आप एक रखोगे अपने सिस्टम के अंदर, जब आप पूरा सिस्टम बिल्ड कर रहे हो, अगर आप एक सिर्फ यूजर सिस्टम रखोगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट मे फेल, राइट? सिमिलरली अगर फाइल सर्वर की बात करता हूं तो आपके यहाँ पे एक फाइल सर्वर हमने बनाया था. अगर फाइल सर्वर आप सिर्फ एक रखोगे अपने पूरे सिस्टम के अंदर तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट मे फेल. सिमिलरली जो फाइल सर्वर आपका लास्ट में डीबी से बात करता है, जहां पे आपका एक्चुअली फाइल का कंटेंट सेव होता है, ब्लॉब स्टोरेज, राइट? अगर आप उसको एक कंपोनेंट रखोगे, सिर्फ एक ही ब्लॉब स्टोरेज रखोगे जिसमें आप अपना डेटा को रख रहे हो, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट मे फेल, राइट? सो टू मेक श्योर दैट योर सिस्टम इज रिलायबल, right, to make sure that your system is fulfilling the request, you need to make sure that you have to have copies of your service components, right? So for example यहाँ पे एक API gateway है, तो इस API gateway का आप डुप्लीकेट कर दो, रेप्लीकेट करो, राइट? यू हैव सर्वर, तो जितना भी आपके पास जैसे यूजर सर्वर है या फाइल सर्वर है, रेप्लीकेट दिस, राइट? हैव टू कंपोनेंट्स एटलीस्ट, right? So even if this fails, so you can fulfill the request using this server. Even if this fails, so you should have another third server which will start fulfilling the request. Similarly, whatever databases that you have in your system, make sure that you have copies of those databases. Again, user to file mapping system, again it was a system, right? So you have to make sure that you have replicated them, you have to make copies. So whatever single point of failures are there in your system, they need to be you need to basically make shadow copies of those service components. So that is the first thing through which you can achieve reliability, right? And the second thing is that you need to use circuit breakers. Say for example, what circuit breaker means? Say for example, if some request is failing, right? Maybe let's say your server is not able to handle 10 MB greater than 10 MB size, let's say, right? But less than 10 MB it is able to fulfill the request, it is able to upload, but greater than 10 MB it is not able to fulfill the request, it is not able to upload. So if your system should be enough intelligent that let's say if 10 MB request fails twice or maybe thrice or maybe 4 times, then if user tries 5th time, so it should not try to upload it. It should actually give the response back to the user that okay, right now we can't really fulfill your request because yours maybe some reason with some reason, but it should not actually try to upload because it actually knows now. Your system should be enough intelligent that because we have already tried 4 times, so definitely it is the case that in 5th time it will also fail.
right? So you need to give some buffer time. Okay, like for example now let's give buffer time of 20 minutes, that in 20 minutes अगर यूजर कोई भी अपलोड करता है 10 greater than 10 MB की फाइल, तो हम उसको विदाउट एक्चुअली ट्राइंग टू अपलोड हम उसको रिस्पॉन्स बैक कर देंगे कि अभी हम फुलफिल नहीं कर सकते रिक्वेस्ट। इससे क्या होता है ना, इससे आपका ओवरहेड बच जाता है, राइट? तो एनी हाउ आपको भी पता है कि अगर 4 टाइम सिस्टम ने फेल किया तो 5वें बार देयर इज अ मोस्ट पॉसिबल, लाइक देयर इज अ मोर प्रोबेबिलिटी दैट 5th टाइम ऑल्सो द रिक्वेस्ट विल गेट फेल। तो 5th टाइम ट्राई ही क्यों करना, राइट? तो 5th टाइम बिना ट्राई करे यूजर को आप रिस्पॉन्स दे दो दैट योर रिक्वेस्ट विल बी फेल्ड, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम और व्हाटएवर, राइट? उससे क्या होगा कि उस मोमेंट में, जिस मोमेंट में आपने यूजर को मना कर दिया, उस मोमेंट में आपका सिस्टम रिकवर कर सकता है, राइट? तो इन सब चीजों को बोलते हैं सर्किट ब्रेकर पैटर्न्स। तो रीट्राई मैकेनिज्म्स होती है, राइट? तो रीट्राई मैकेनिज्म्स को हम फुलफिल करते हैं एंड देन वी एक्चुअली इंप्लीमेंट सर्किट ब्रेकर पैटर्न्स। और इससे क्या होता है, इससे बेसिकली ओवरहेड रिक्वेस्ट बच जाता है हमारे पास, राइट? एंड so like these are the things through which you can achieve the reliability. There is one more component through which you can make your system reliable. Let's look at that particular thing also. So that is reliability once again. So reliability can also be achieved by having proper monitoring system, right? Monitoring system. So unless you will not monitor your system, you will not actually able to take decisions, right? So you have to constantly monitor your system, and to constantly monitor your system you need to have Grafana and Prometheus kind of boards, right? So this basically, Prometheus is for collecting metrics and Grafana is actually takes these metrics and show you, right? So basically it's a kind of user interface, right? It's a kind of user interface which actually shows you graphs, right? Okay, maybe number of requests failing, passing, and the CPU usage, memory usage, whatever, right? Prometheus actually takes like enter into your system and collects the metrics. So those metrics are actually sent to Grafana, and then on Grafana you can actually see those metrics in form of graph, right? So these two can be, using these two monitoring system, you can basically monitor your entire system and make sure that your system is reliable, right? Like you will be able to take decisions. Let's say for example, if Grafana is telling you that you have the limit of CPU, let's say 6-core CPU, right? Maybe let's say talk about memory. So let's say you have marked the system will take 6 GB memory. Now you are seeing the graph that it is hitting 6 GB memory, that there is a possibility that it can go up also. So now at this moment you will be able to decide, okay, in our system let's scale this from 6 to let's make it 8 GB, right? So once you will do it 8 GB, now you have lot of buffer to serve your users. So that's how these kind of decisions you can take to make your system reliable, right? So how we can make the system reliable? Just making the replication to avoid single point of failures. Make sure that you replicate all those single point of failures in your system, and you can have circuit breaker and service monitoring properly enabled in your system so that your system can be reliable, right? Now let's talk about the next component, which is security. So basically when we talk about security, so you must know that our system, our file service actually allows authorized access to authenticated users only. So that means if there is some user, this user has to authenticate first, right? It has to authenticate first. Authenticate means that it will give some login and password. So first of all, it will be authenticated. Okay, we know that like this user actually exists in our database. But every user which exists in our database doesn't mean that it is authorized user to access some file. So that means it will go another layer which is authorized. Authorized means read and write access for the users, right? So because our system, our file service that we are building, it actually allows authorized access to authenticated users only. Therefore, we need to have proper login and logout mechanisms, right? So these kind of mechanisms can only be achieved by using maybe OAuth 2.0. So you can read about it. What is OAuth 2.0? It's a third-party integration, right? Or maybe you can use OpenID Connect, right? So like you have seen login by Google, login by Facebook, login by GitHub. So these kind of mechanisms maybe you can perform, or you can have a simple direct system also, like some user can give email and then password, and then he can create his or her account by email and that password, and maybe you can have some mechanisms involved to verify that email of the user, right? So you can have the direct login and logout system also on the basis of email and password, or you may have some OpenID Connect or OAuth 2.0 kind of third-party interactions, right? Great. So this is how we can ensure the security in our system. And the second most important thing is that the data that you are storing, it should be encrypted, right? So that the attacker can't extract any valuable information out of it, right? So you need to make sure that you store your data in the encryption form so that your data is, let's say, secure, right? Okay, so this how we can basically ensure security. So guys, you don't have to basically come up like how things will be working. You just need to come up with your ideas. That's it. That's how low-level design systems are, like interview rounds are there, right? So you just need to know the things. You just need to know the mechanisms, right? It is not, they are not really expecting you to have, that you need to build the entire system in just half or 1 hour. But you have to come up with the ideas. You have to come up with the mechanisms. You need to show that we know the things, right? So this is how we can achieve the security. Now let's talk about the next non-functional requirement, which is scalability, right?
So what is scalability? So scalability means that your system should be scalable. So let's say today if 10k users are there on your platform, so you need to make sure that tomorrow if 10 million users are hitting your website, so your system should be able to serve those, your system should be serve those 10 million users, right? You need to make sure that. So how we can make our system scalable? So first of all, you need to have separate metadata and blob storage. So you need to make sure that you are storing metadata in some other database, right? And you are storing some, user like file related content in some other database, right? So because you have two different things, so they can scale independently now, right? They can scale independently now. Okay, now the persistently storing the schema information. So जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि वी नीड टू चेंज आर स्कीमा, राइट? हमें बहुत बार अपना स्कीमा को चेंज करना पड़ता है, तो उस केस में हम स्कीमा इन्फॉर्मेशन को भी स्टोर करके रखेंगे, स्कीमा का वर्जन, टाइप ऑफ एनक्रिप्शन अलॉन्ग विद द डेटा यूज टू रीड एंड राइट द फाइल. तो मे बी आपको ज़्यादा क्लियर ना हो एट दिस मोमेंट, बट in upcoming videos when we will talk about some other APIs like search service, lead code service, so you will be able to get those things, right? Okay, and then horizontal scalable storage. तो अब जैसे फॉर एग्जांपल आज आपके पास एक ब्लॉब स्टोरेज है, राइट? और इसमें लोग 10 MB की फाइल्स को अपलोड कर रहे हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ये ब्लॉब स्टोरेज अगर मान लो आपके पास मे बी 10 TB का है, तो ऐसा हो सकता है कि 10 TB का मे बी विद इन अ ईयर, और खैर 10 TB विद इन ईयर की तो बात ही नहीं करते, कुछ महीनों में लेट से आपका भर सकता है, बिकॉज अगर आपकी सर्विस पॉपुलर हो रही है, राइट, पीपल आर यूजिंग योर सर्विस, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ये सिस्टम आपका स्टोरेज भर जाएगा. तो अगर ये स्टोरेज भरा, तो देन लाइक इट विल स्टार्ट फेलिंग द रिक्वेस्ट दैट आई कांट स्टोर योर डेटा, obviously, right? So what things we need to have? We need to make sure that we tomorrow should be able to scale this system horizontally. Horizontally means we need to have another instance of this. We will make one more blob storage of maybe same 10 TB or maybe 20 TB, whatever. It depends on you, and it will now start serving your users, right? So that's how, like, we need to make sure that horizontally scalable storages should be there. Okay, even if one is filled, so we need to make sure that we should have another one, right, to serve the users, because no request should fail. रिक्वेस्ट हम नहीं चाहते कि किसी यूजर की फेल हो, राइट? तो स्केलेबिलिटी, दैट्स हाउ वी कैन अचीव स्केलेबिलिटी, राइट? स्केलेबिलिटी और भी तरीके से अचीव कर सकते हो. एक तो हॉरिजॉन्टली होगा, आप वर्टिकली भी कर सकते हो, राइट? सो से फॉर एग्जांपल अभी क्या है कि अभी मान लो आपका जो सिस्टम है, लेट्स से वो 6 GB रैम को ले रहा है, राइट? मे बी आपका जो मेमोरी है वो 6 GB रैम ले रहा है. तो अब ऐसा हो सकता है कि इफ यूजर्स आर हिटिंग योर रिक्वेस्ट, तो इट विल कंज्यूम मोर मेमोरी, राइट? सो यू नीड टू मेक श्योर दैट इंस्टेड ऑफ दिस 60 योर सिस्टम शुड बी ऑटो स्केल टू 8 MB. So you may have auto scaling mechanisms also involved in your system, or if not auto scale mechanism, then you should be able to manually scale it to 8 MB, right? So if 8 MB is filled, you should be able to scale it to 10 MB like this. Okay, auto scaling mechanisms बहुत काम आती है. मैं जैसे बताता हूँ आपको एग्जांपल. जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो कि जब एक IPL मैच चल रहा है, लेट्स से, तो व्हेन IPL मैच इज गोइंग ऑन, तो IPL मैच का एक फिक्स टाइम है, लाइक 3:30 to maybe 7:30 and then maybe 7:30 to maybe 11:30, right? These two timings are critical timings. तो आपको क्या करना है, आपको मेक श्योर करना है कि योर सिस्टम शुड ऑटो स्केल इन दीज टू टाइमिंग्स. आपका सिस्टम ऑटो स्केल होना चाहिए एज पर द यूजर आर इंक्रीजिंग, योर सिस्टम शुड ऑटो स्केल. तो मान लो अगर 6 GB मेमोरी थी बाय डिफॉल्ट, तो 6 से एकदम से 12 GB होना चाहिए एज पर द यूजर्स आर इंक्रीजिंग, राइट? और जैसे ये मैच खत्म होता है, अपार्ट फ्रॉम दीज टू टाइमिंग्स, योर सिस्टम शुड नाउ गो डाउन. तो बाय डिफॉल्ट ये 12 GB से आपकी मेमोरी कंजप्शन 6 GB हो जाना चाहिए, ऑटो स्केलिंग, राइट? तो क्योंकि यार इंफ्रा से कॉस्ट होती है, ठीक है? अगर आप गूगल का इंफ्रा यूज कर रहे हो या AWS का इंफ्रा यूज कर रहे हो, तो वो आपके पास जितना इंफ्रा आप यूज कर रहे हो उसके हिसाब से चार्जेस करते हैं, राइट? तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते ना कि 12 GB आप बाय डिफॉल्ट लेकर के छोड़ दोगे कि हम तो 12 GB कंज्यूम करेंगे, जबकि आप कर 4 GB कंज्यूम रहे हो, तो वो 8 GB तो बेकार है ना. तो इसलिए आपका सिस्टम ऑटो स्केल होना चाहिए, राइट? तो स्केलेबिलिटी है. स्केलेबिलिटी के लिए को अचीव करने के लिए वी कैन हैव प्रॉपर मैकेनिज्म्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट. सो लेट्स टॉक अबाउट अवेलेबिलिटी नाउ. सो यार अब देखो, अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी में डिफरेंस है. एक मिनट के लिए आप सोच सकते हो कि यार अवेलेबिलिटी, जो आपने रिलायबिलिटी में बोला वो सब तो अवेलेबिलिटी का पार्ट है ना? तो दैट्स नॉट द केस. लेट मी टेल यू. देखो यार, रिलायबिलिटी का मतलब है कि आप अपने सिस्टम के अंदर प्रॉपर नंबर ऑफ रिसोर्सेज रख रहे हो, सो दैट कि यूजर कोई रिक्वेस्ट फेल ना हो यूजर का, ठीक है? अवेलेबिलिटी का मतलब पता है क्या है? इवन आफ्टर हैविंग इनफ नंबर ऑफ रिसोर्सेज इन योर सिस्टम. अगर हम ये बोल रहे थे कि आपको 2 डेटाबेसेस रखने पड़ेंगे, इवन 3 रखना पड़ेंगे, तो रिलायबिलिटी ने बोला ठीक है कि हम 3 डेटाबेसेस के रेप्लिकेशन रखेंगे, ठीक है? तो दीज आर द 3 इंस्टेंसेज ऑफ डेटाबेस, राइट? इवन आफ्टर हैविंग 3 इंस्टेंसेस, अगर आपके नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं और फिर भी आप उनको सर्व नहीं कर पा रहे, तो नाउ देयर कम्स अ पिक्चर ऑफ अवेलेबिलिटी. क्या रीजंस हो सकते हैं कि इवन आफ्टर हैविंग 3 इंस्टेंसेस स्टिल यू आर नॉट एबल टू सर्व योर यूजर्स? क्या रीजंस हो सकते हैं? रीजंस हो सकते हैं कि कोई अटैकर आपके रिक्वेस्ट को लाइक फालतू में कोई मतलब
फालतू की रिक्वेस्ट हिट करे जा रहे हैं, राइट। सो अगर आप फालतू की रिक्वेस्ट को हिट करोगे तो उससे आपका सिस्टम बिजी होगा, राइट। यू वॉन्ट बी एबल टू सर्व यूजर्स, मोर नंबर ऑफ यूजर्स। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी नीड टू अप्लाई रेट लिमिटिंग। तो हम इंपोज कर देते हैं रेट लिमिटिंग मैकेनिज्म। रेट लिमिटिंग मैकेनिज्म क्या होता है कि एक लेट्स से फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे अगर मैं लीड कोड की बात करूं, तो अगर आप लीड कोड, जैसे कॉलेजेस में क्या होता है, मैं आपको कॉलेजेस का एग्जांपल बताता हूं। तो कॉलेजेस में क्या होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 250 स्टूडेंट्स एक सेमिनार हॉल में बैठे हैं एंड दीज 250 स्टूडेंट्स आर एक्सेसिंग लीड कोड वेबसाइट, राइट। तो दे आर कनेक्टेड टू आईपी एड्रेस, दे आर कनेक्टेड टू कॉलेज वाईफाई, और जब कॉलेज के वाईफाई से कनेक्टेड है तो वहां पे सेम आईपी एड्रेस यूज हो रहा है। तो लीड कोड ने कुछ ऐसी मैकेनिज्म इंप्लीमेंट की हुई है कि अगर सेम आईपी एड्रेस से अगर एक साथ 250 रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, तो वो इट विल स्टार्ट फेलिंग द रिक्वेस्ट ऑफ अदर पीपल। तो अगर 250 से ज्यादा कोई भी रिक्वेस्ट आती है, मान लो अगर 251st स्टूडेंट अगर कोई रिक्वेस्ट हिट करता है, तो उस केस में रिक्वेस्ट फेल होना शुरू कर देगा। वो बोलेगा कि वी आर नॉट एबल टू सर्व यू, राइट। तो इसलिए हमें प्रॉपर रेट लिमिटिंग मैकेनिज्म हमारे पास होनी चाहिए कि अगर किसी पर्टिकुलर सेम रिसोर्स से मल्टीपल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आ रही है विद इन सम पीरियड ऑफ टाइम, तो हमें उन रिक्वेस्ट को फेल करना है, बिकॉज इट माइट बी पॉसिबल कि वो कुछ DOS अटैक हो, राइट। सो वी इंपोज रेट लिमिट्स ऑन इनकमिंग रिक्वेस्ट एंड कोटा लिमिट्स। हम कोटा भी डिफाइन करते हैं कि स्पेसिफिक विद इन टाइम पीरियड हम इतना ही नंबर ऑफ रिक्वेस्ट एक आईपी एड्रेस को अलाउ करेंगे। तो दैट्स हाउ वी इंपोज कोटा लिमिट्स ऑल्सो फॉर थर्ड पार्टी कंज्यूमर्स एप्लीकेशंस टू रिड्यूस सर्वर लोड एंड प्रिवेंट DOS अटैक्स, राइट। एंड और क्या कर सकते हैं, और हम मैक्सिमम अपलोड साइज लिमिट भी कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि अगर किसी बंदे ने लेट्स से 100 GB का फाइल अपलोड करने के लिए लगा दिया, तो यार ये मेरे सिस्टम को क्रैक कर रहा है ना, ये मेरे सिस्टम को बल्कि बना रहा है, राइट। रिक्वेस्ट का साइज बढ़ रहा है तो रिस्पॉन्स टाइम भी बढ़ेगा, रिस्पॉन्स टाइम बढ़ेगा तो मेरा सिस्टम बिजी होगा। तो हमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस मैक्सिमम अपलोड साइज पे भी रखनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 10 MB, राइट, या वर्स्ट केस में 500 MB से ज्यादा की फाइल आप अपलोड नहीं करोगे, राइट। ऐसा कुछ हमें मैकेनिज्म्स रखना पड़ेगा। एंड देन वी हैव टू अवॉइड सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर्स फॉर पॉपुलर एंड पॉइंट्स। तो वैसे अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी में काफी सिमिलरिटी होती है, जैसे कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर्स को हमें रिमूव करना है, अवॉइड करना है। तो अगर कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है तो मेक श्योर दैट यू रेप्लिकेट देम, उसके 2 इंस्टेंसेस बनाओ, राइट। सो रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी गोज हैंड इन हैंड, राइट। उनको दोनों को एक साथ ही वो चीजें हैं। तो दिस इज लाइक आई होप you are clear with the availability part now, right? How we can actually make our system, how we can actually make sure that our system is available. तो जो भी वो हमने डिजाइन बनाया था ना, उस डिजाइन में क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे, उस डिजाइन में पता है क्या चेंजेस आ जाएंगे। जैसे कि अगर मैंने एक फाइल सर्वर बनाया था, तो अब क्या करोगे आप, इस फाइल सर्वर का एक और रेप्लिकेशन कर दोगे, तीसरा रेप्लिकेशन कर दोगे। अगर मैंने कोई लेट्स से यूजर सर्वर बनाया था, यूजर सर्वर, तो आप यूजर सर्वर का क्या बना दोगे, मल्टीपल रेप्लिकेट कर दोगे। खैर ये चीज़ आपकी सिस्टम डिजाइन में आ जाती है, ये चीज़ आपके सिस्टम डिजाइन का पार्ट हो जाती है, बट वी आर नॉट एक्चुअली रीडिंग सिस्टम डिजाइन। तो हमें बस नॉर्मल पढ़ना है इसके ऊपर से। हम API डिजाइन पढ़ रहे हैं, लेट्स नॉट रिमूव आवर फोकस। हम API डिजाइन पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट स्टडिंग सिस्टम डिजाइन, वी आर स्टडिंग API डिजाइन, हाउ टू मेक API इज बेटर, राइट। चलो नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, लो लेटेंसी। सो व्हाट इज लो लेटेंसी? लो लेटेंसी का मतलब होता है कि अगर किसी क्लाइंट ने आपके सर्वर को हिट किया, तो आपके सर्वर कितना लेटेंसी के साथ, कितना स्पीडीली, कितना फास्टली आपका सिस्टम रिस्पॉन्ड कर दे रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्स दे रहा है किसी गिवन रिक्वेस्ट का। तो इसको हम बोलते हैं लाइक लेटेंसी। तो जितना टाइम लगेगा वो उतना ही लेटेंसी होगा, हाई लेटेंसी हो जाएगा। कम टाइम में दोगे तो आप सिस्टम को बोल रहे हो लो लेटेंसी। तो कोई भी यूजर नहीं चाहता कि अगर मैंने रिक्वेस्ट मार के छोड़ दिया सिस्टम पे तो सिस्टम मेरे को 10 मिनट बाद रिस्पॉन्ड कर रहा है। एवरीबडी वांट्स के मेरा सिस्टम एकदम मेरे को रिस्पॉन्ड करे, राइट। तो वी वांट सिस्टम्स टू बी लो लेटेंसी, राइट। तो कैसे कर सकते हैं लो लेटेंसी इंश्योर? तो हम मेक श्योर करेंगे कि अपलोड जो भी यूजर कर रहा है उसके लिए आप अपलोड लो और टेम्पररी स्टोरेज में स्टोर कर दो। प्रोसेसिंग आप बाद में करो, यूजर को फ्री कर दो, राइट। तो जो आपका टेम्पररी स्टोरेज है उसमें आप डेटा को स्टोर कर लो एंड देन आप प्रोसेसिंग करते रहो अपने बैकएंड में, बट यूजर को फ्री कर दो। यूजर को मेक श्योर करो कि दैट योर डेटा हैज बीन रिसीव्ड, नाउ यू आर फ्री, यू कैन गो, राइट। तो टेम्पररी स्टोरेज को हम यूज करेंगे फॉर फास्टर अपलोड्स, राइट। CDNs को यूज करेंगे टू डाउनलोड द फास्ट। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई यूजर है तो जरूरी नहीं कि वो लास्ट एंड डेटाबेस से ही सारा डेटा मांग के लेके आए। आपका जो API गेटवे होगा, आपका API गेटवे मेक श्योर करेगा कि अगर कोई पर्टिकुलर फाइल जो कि यूजर डिमांड कर रहा है, अगर वो आपके CDN पे अवेलेबल है तो वो यहां से इसको उठा के दे देगा, राइट। तो CDNs के लिए हम यूज करेंगे फास्टर डाउनलोड्स के लिए। एंड जो भी आपका एनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन हो रहा है उसको हम स्ट्रीमिंग फॉर्मेट्स हम यूज करेंगे ताकि हम यूजर का रिस्पॉन्स टाइम दे सकें। तो से फॉर एग्जांपल अगर कोई वीडियो है, राइट, तो जैसे कोई वीडियो सपोज करो कोई डाउनलोड नहीं कर रहा है, मान लो वो डाउनलोड नहीं कर रहा है और वो वॉच कर रहा है, डायरेक्टली वॉच भी कर सकते हैं आप वीडियो, मान लो ये भी एक यूज केस है गूगल ड्राइव का, राइट। आप सीधा जा करके वॉच कर सकते हो। तो क्योंकि वॉच आप पूरी वीडियो तो एक साथ करोगे नहीं, तो आप क्या करोगे, आप बफरिंग होती है वहां पे, तो जितना बफर हो रहा है उतने को आप डिक्रिप्ट करते रहो, पूरे को डिक्रिप्ट मत करो। उससे क्या होगा, रिस्पॉन्स टाइम बदलेगा और यूजर को भी एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि रिस्पॉन्स इज फास्टर।
है ना, और वो वेट भी कर सकता है क्योंकि आप चंक्स में डेटा को स्ट्रीम कर रहे हो और जो जैसे जैसे डेटा स्ट्रीम हो रहा है वैसे वैसे आप उसको डिक्रिप्ट कर रहे हो, राइट। तो इन स्ट्रीमिंग एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन मेक्स योर सिस्टम वेरी मच लो लेटेंट, राइट, काफी लो लेटेंसी प्रोवाइड करेगा वो फिर, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच यू कैन टॉक अबाउट टू योर इंटरव्यू, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम लेटेंसी बजट्स, राइट। लेटेंसी बजट के बारे में बात करते हैं, लाइक कैसे हम डिसाइड करेंगे कितना लेटेंसी हमारे सिस्टम का होगा, है ना, और वो कैलकुलेशंस कैसे होंगी। तो यार एक काम करते हैं, अज्यूम करते हैं कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर जो है वो एक अपलोड करता है, डाउनलोड करता है 10 MB की रॉ इमेज को, ठीक है। हम 10 MB का केस लेंगे कि 10 MB का अपलोड हो रहा है, ठीक है, और 10 MB का डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। 10 MB पे खेलते हैं। अब देखते हैं कि व्हाट बेसिकली डिसीजंस वी कैन टेक, ठीक है। तो हम दो सिनेरियोज देखेंगे, एक तो अपलोड रिक्वेस्ट करने का कि अगर मैं किसी रिक्वेस्ट को अपलोड मतलब किसी फाइल को अपलोड कर रहा हूँ विद 10 MB तो क्या रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स टाइम होगा, एंड एट द सेम टाइम फिर हम बात करेंगे अगर मैं किसी 10 MB की फाइल को डाउनलोड कर रहा हूँ फ्रॉम द सर्वर तो उस केस में आपका क्या लेटेंसी, मेरा सिस्टम क्या रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट साइज क्या होगा, ठीक है। वो सब चीज़ों पे बात करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द अपलोड रिक्वेस्ट। सो अपलोड रिक्वेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे ना कुछ चीज़ों को आपको प्री अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है, और ऐसा समझना पड़ेगा कि आपको उन चीज़ों के बारे में पहले से पता है ना। और रही बात कि वो चीज़ें कैसे पता चलेंगी, उसके लिए मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं एक लिंक्डइन पे एक पोस्ट डाल दूंगा, वहाँ से आप उन चीज़ों को समझ सकते हो। किस बारे में बात करूँ अभी आपको समझ में आएगा 2 मिनट बाद। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स साइज की बात करते हैं। यार देखो, जब भी आप कोई पोस्ट रिक्वेस्ट हिट करते हो, है ना, किसी भी सर्वर पे, तो जो आप स्टैंडर्ड, अगर मैं स्टैंडर्ड साइज की बात करूँ तो स्टैंडर्ड पोस्ट रिक्वेस्ट का बेसिकली क्या होता है कि उसका साइज जो होता है वो 2 KB साइज होता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड साइज है, ये ज़्यादा कम भी हो सकता है, जो कि मान लो कुछ तो उसमें हेडर्स होंगे, ठीक है। आप जैसे हेडर्स प्रोवाइड करते हो, लैंग्वेज एक्सलैंग हेडर आपने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, और भी बहुत सारे अलग तरह के हेडर्स होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कंटेंट टाइप, ये सब हेडर्स जो हम प्रोवाइड कर रहे थे वो सब चीज़ों का सबको मिला करके 2 KB आपका पोस्ट का रिक्वेस्ट का साइज हो गया। और कुछ मेटा डेटा भी आप भेज रहे होंगे जैसे कि फाइल का आईडी, ऑनर का आईडी, ऑथ टोकन, चेकसम, यूजर की लिस्ट, हमने इन सब बारों में बात की थी, राइट, लास्ट वीडियो में। तो इन सबको मिला करके जो आपकी टोटल पोस्ट रिक्वेस्ट का जो साइज है वो हो गया 2 KB। तो जो आपकी टोटल रिक्वेस्ट होगी ना, रिक्वेस्ट का जो साइज होगा आपका, वो एक तो होगा स्टैंडर्ड रिक्वेस्ट साइज विच इज नथिंग बट 2 KB, प्लस आप फाइल भी भेज रहे हो तो फाइल को हमने माना है वर्स्ट केस में 10 MB। तो अगर मैं 2 KB और 10 MB को जोड़ूं तो बेसिकली आपका कुछ ऐसा आ जाता है 10,242 KB, 10,242 KB। सो तो टोटल रिक्वेस्ट का जो साइज है, जो आप पोस्ट रिक्वेस्ट साइज हिट कर रहे हो, पोस्ट रिक्वेस्ट जो आप बना रहे हो, उसमें जो रिक्वेस्ट जाएगी उस रिक्वेस्ट का जो साइज होगा वो इतना होगा, राइट, 10,242 KB मान लो ये है, क्योंकि इसमें 10 MB की फाइल भी है। अच्छा, इसके बाद क्या बात करते हैं, एनक्रिप्शन टाइम की बात करते हैं। तो हम बेसिकली कुछ एल्गोरिदम्स को यूज कर रहे होंगे, लेट्स जस्ट इग्नोर दिस वर्ड, जस्ट फोकस ऑन एल्गोरिदम, दैट वी आर यूजिंग सम एल्गोरिदम्स बिफोर स्टोरिंग इट इन ब्लॉब स्टोरेज। तो ब्लॉब स्टोरेज में, फाइनल स्टोरेज में स्टोर करने से पहले हम कुछ एल्गोरिदम्स को यूज कर रहे होंगे, एंड दीज एल्गोरिदम्स विल टेक केयर ऑफ एनक्रिप्टिंग द डेटा। तो देयरफॉर वी आर अज्यूमिंग कि एक 10 MB की फाइल को अपलोड करने के लिए लेट्स अज्यूम कि प्रोसेसिंग टाइम जो होगा वो इतने से बढ़ेगा। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग हाउ डिड यू कम अप विद दिस नंबर। तो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ सम रिसर्च, राइट, कि एक 10 MB की फाइल को अपलोड करने के लिए अगर मैं एक बेहतर एल्गोरिदम्स के साथ लगाऊं, है ना, तो कितना रिस्पॉन्स, कितना प्रोसेसिंग टाइम मेरा इंक्रीमेंट होगा। तो ये एक अप्रोक्सीमेट नंबर है विच यू कैन अज्यूम टू बी 6.191 मिली सेकेंड्स, राइट। सो दिस इज अप्रोक्सीमेट नंबर। खैर, अभी हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेट्स गो अहेड एंड ट्राई टू फिगर आउट मोर थिंग्स, राइट। सो अभी तक हमने जो बात करी है वो हमने रिक्वेस्ट साइज की बात करी है, और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो हमारा जो रिक्वेस्ट साइज आया वो हमने निकाला है कितना, कि दिस इज 10,240 KB, राइट। और हमने एक प्रोसेसिंग टाइम की बात करी थी जो कि सिर्फ एनक्रिप्शन का प्रोसेसिंग टाइम था, एनक्रिप्शन का सिर्फ उसकी बात करी थी विच वॉज 6.191 मिली सेकेंड। ये दो चीज़ों की हमने बात करी है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लाइक व्हाट इज दिस इज रिस्पॉन्स टाइम। तो यार देखो, आप यहाँ पे मैंने काफ़ी बड़ा फॉर्मूला से लिख दिया है, तो इसको देखते एक बार। तो आपका जो टोटल रिस्पॉन्स टाइम होता है ना, वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, टोटल लेटेंसी टाइम एंड टोटल प्रोसेसिंग टाइम। इनके बारे में बात करेंगे अभी। जो लेटेंसी टाइम होता है वो इस फॉर्मूले से निकलता है, टोटल बेस टाइम, टोटल RTT पोस्ट टाइम, दिस इज राउंड ट्रिप टाइम। राउंड ट्रिप का मतलब कि रिक्वेस्ट गई और पूरा वापस करके आ गई, तो राउंड ट्रिप टाइम। तो जो लेटेंसी टाइम होता है वो बेस टाइम प्लस RTT पोस्ट एंड देन देयर इज सम डाउनलोड फीचर ऑल्सो। इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिलकर के आपका क्या बनता है, लेटेंसी टाइम। और फिर ये जो RTT पोस्ट टाइम होता है ना, इसका एक फिक्स्ड फॉर्मूला होता है ये। तो RTT बेस टाइम देन 1.5 इंटू टोटल रिक्वेस्ट साइज। अब आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानने की जरूरत कोई नहीं है, क्योंकि हम डिटेल में पढ़ रहे थे, इसलिए मैंने आपको समझा रहा हूँ। बट जब आप इंटरव्यू में इन चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे तो आपको इन चीज़ों के बारे में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा बोलो कि जो रिस्पॉन्स टाइम होगा वो लेटेंसी टाइम होगा और प्रोसेसिंग टाइम होगा। और तुम सिंपली बोल सकते हो कि लेटेंसी टाइम जो होगा दैट कैन बी डिफाइंड बाय, ये सब टाइम को आप निगलेक्ट कर दो,
इन सब टाइम को आप निगलेक्ट कर दो और आप इस पे फोकस करो कि अज्यूम करो कि लेटेंसी टाइम वॉट एवर सम ऑफ दी लेट्स से एक्स मिली सेकेंड्स जो कि इस टाइम में, 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 इस टाइम में लगेंगी, ठीक है। और इस टाइम को निकालते वक्त जो रिक्वेस्ट साइज होगा उसमें तुम कुछ एडिशनल टाइम ऐड कर लो कि कितना होगा, तो मे बी सम वाई मिली सेकेंड्स। तो आप एक्सप्लेन जरूर करो, लेकिन तो उससे क्या होगा, इससे पता चलेगा कि ठीक है इनको एक्चुअल नंबर्स नहीं पता है कि भाई कितने से कैसे निकलेगा, कुछ एस्टिमेट्स नहीं है, बट ही हैज़ द नॉलेज, okay, how latency time is calculated. But I will calculate in this video. I will calculate in detail. Don't worry about it. I will calculate. But yes, these are the numbers. That's how you can actually calculate your response time, complete response time. Fine. तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या होता है ना। तो यार मैं आपको बताता हूँ, देखो आरटीटी पोस्ट को चलो अलग से देखेंगे, बट ये जो बेस टाइम वगैरह है, जो डाउनलोड टाइम वगैरह है, ये सब क्या होता है। तो यार देखो, जब कोई रिक्वेस्ट आप प्रिपेयर करते हो ना, जब आप किसी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को हिट करने के लिए प्रिपेयर करते हो, मतलब जब वो रिक्वेस्ट प्रिपेयर हो रही होती है, तो उस रिक्वेस्ट को वहां से जाने में और वापस आने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं लेटेंसी टाइम। अब ये लेटेंसी टाइम में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, जैसे कि सॉकेट को इनिशियलाइज करना, डीएनएस लुकअप, बिकॉज क्या होता है ना कि जो सर्वर होता है वो तो मतलब क्या होता है कि आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे हिट करते हो, जैसे कि google.com, राइट, या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि लेट्स से यू आर हिटिंग InnoScript.in। तो यार InnoScript.in तो वेबसाइट, आप तो एक गूगल में एक स्ट्रिंग लिख रहे हो ना, बट गूगल को कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रिंग किस पर्टिकुलर आईपी से एसोसिएटेड है, तो उसके लिए डीएनएस लुकअप होना होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जहाँ पे भी डोमेन नेम सर्वर्स हमारे अलोकेटेड है, तो हम देखते हैं कि InnoScript.in के रिस्पेक्टिव में कौन सा आईपी एड्रेस है उसको हिट करना होता है, तो डीएनएस लुकअप का टाइम होता है, टीसीपी हैंडशेक, एसएसएल हैंडशेक, ट्रांसफर स्टार्ट, बहुत सारे टाइमिंग्स इन्वॉल्व होते हैं। तो उन सब चीज़ों को बोलता जाता है बेस टाइम, और डाउनलोड की कैटेगरी में वो सब टाइम आते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें टाइम जो आते हैं वो आपके इन सब में आते हैं। एंड देन आरटीटी पोस्ट, तो जो आपकी स्टैंडर्ड पोस्ट रिक्वेस्ट होती है, उस पोस्ट रिक्वेस्ट में भी कुछ टाइम लगता है, उसको प्रिपेयर करने में राउंड ट्रिप टाइम, उसका कुछ राउंड ट्रिप टाइम बेस टाइम होता है, और ये कुछ एक स्पेसिफिक नंबर है 1.15 जो कि मेरे रिसर्च के बेसिस पे है, आप भी पढ़ सकते हो इस बारे में। और इसका मल्टीप्लिकेशन होता है आपकी जो टोटल रिक्वेस्ट का साइज है, जैसे कि हमारे केस में 10240 KB का होगा, ठीक है, एक्चुअली 242 बिकॉज इसमें 2 KB का वो भी था ना, टोटल 242 होगा। खैर, लेट्स टॉक अबाउट इन डिटेल और कैलकुलेट करके देखते हैं इसको कि ये कैसे हमारे पास कैलकुलेट होगा, राइट। टोटल रिस्पॉन्स टाइम विल बी इक्वल टू लेटेंसी टाइम प्लस प्रोसेसिंग टाइम। अब हमें पहले निकालना है लेटेंसी टाइम, और लेटेंसी टाइम को निकालने के लिए हमें पता है एक फॉर्मूला चाहिए होगा विच इज आरटीटी। तो हमें आरटीटी पोस्ट निकालते हैं पहले। तो यार आरटीटी पोस्ट निकालते हैं पहले। आरटीटी पोस्ट क्या होगा, आरटीटी पोस्ट जो होगा राउंड ट्रिप टाइम पोस्ट रिक्वेस्ट का क्या होगा, वो आरटीटी बेस होगा, एंड देन प्लस 1 पॉइंट, मैं लिख देता हूँ आरटीटी बेस प्लस 1.15 इंटू जो भी आपका रिक्वेस्ट का साइज है, ठीक है, जो भी आपका रिक्वेस्ट का साइज है। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं फटाफट से। ये फिक्स्ड होता है जी, इसको 260 मिली सेकेंड अज्यूम किया गया है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बट यू कैन रीड अबाउट इट। तो आरटीटी बेस जो आपकी पोस्ट रिक्वेस्ट का जो राउंड ट्रिप टाइम का जो बेस टाइम होता है वो 260 मिली सेकेंड्स हम अज्यूम कर रहे हैं, प्लस 1.15 की मल्टीप्लाई करोगे आप किससे, रिक्वेस्ट के साइज से, विच इज़ नथिंग बट 10242, और ये केबी में होता है, ठीक है। तो जब आप इसको पूरे को कैलकुलेट करोगे तो इट विल गिव यू सम नंबर, वो नंबर क्या आएगा उसके बारे में भी बात कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, खैर मतलब ये आपकी कैलकुलेशन हो गई पूरी आरटीटी पोस्ट की। अब आरटीटी पोस्ट कहाँ यूज़ होता है, लेटेंसी टाइम को निकालने में। तो अगर मैं लेटेंसी टाइम निकालूँ तो लेटेंसी टाइम कैसे निकलेगा, लेटेंसी टाइम आपका निकलेगा टोटल विच इज़ बेस टाइम। सो बेस टाइम होगा कुछ तो आपका, उस बेस टाइम को वी आर अज्यूमिंग दैट इट इज़ गोना बी 120.5 मिली सेकेंड, प्लस ये जो आपकी टोटल कैलकुलेशन है विच इज़ 260 प्लस 1.15 इंटू 10242, राइट, 10242, और प्लस डाउनलोड, क्योंकि हमने देखा था कि लेटेंसी टाइम जो होता है वो बेस टाइम प्लस आरटीटी पोस्ट प्लस डाउनलोड। तो डाउनलोड में वी आर अज्यूमिंग दैट इट विल टेक ओनली 4, नॉट 4 बट 0.4, इट इज़ 0.4 मिली सेकेंड्स। तो यार यू मस्ट बी थिंकिंग दैट ये नंबर मुझे को कहाँ से पता है, दिस आर द जस्ट रिसर्च, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो रिसर्च अबाउट देम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो अल्टीमेटली जो लेटेंसी टाइम आएगा वो आएगा आपका अराउंड 12159.2 मिली सेकेंड्स के अराउंड, ठीक है। ये आपका लेटेंसी टाइम आएगा टोटल। तो आपने पूरा लेटेंसी टाइम निकाल लिया। अब हमारा मेन बचा है प्रोसेसिंग टाइम। तो प्रोसेसिंग टाइम जो होता है ना, उस प्रोसेसिंग टाइम की भी बात करते हैं, बिकॉज लेटेंसी टाइम तो आ गया। प्रोसेसिंग टाइम की अगर मैं बात करूँ तो प्रोसेसिंग टाइम जो आपका टोटल आएगा दैट विल नॉट बी ओनली जस्ट प्रोसेसिंग टाइम, दैट विल नॉट बी ओनली एनक्रिप्शन टाइम। तो उसमें कुछ टाइम तो आपका प्रोसेस करने में लगेगा, प्रोसेसिंग में कुछ तो टाइम लगेगा, और प्लस कुछ आपका एनक्रिप्शन को प्रोसेस करने में लगेगा, एनक्रिप्शन को। तो प्रोसेसिंग जो लगेगा उसको हम अज्यूम कर रहे हैं दैट इट विल बी 4 मिली सेकेंड्स, एंड जो टोटल एनक्रिप्शन था इट विल टेक अराउंड 6.191 मिली सेकेंड, इसके बारे में हमने बात करी थी। तो इट विल बी टोटल 10.191 मिली सेकेंड्स, ठीक है। तो आपका प्रोसेसिंग टाइम आ गया। अब अगर मैं बात करूं आपके टोटल रिस्पॉन्स टाइम की,
तो जो रिस्पॉन्स टाइम होगा वो आपका क्या हो जाएगा, दिस एलिमेंट प्लस दिस एलिमेंट, राइट। तो जो अगर मैं रिस्पॉन्स टाइम की बात करूँ, रिस्पॉन्स टाइम की अगर मैं बात करूँ तो इट विल बी अराउंड, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो इट विल बी कम अराउंड 12169, क्योंकि 59 में 10 होगा तो 69, एंड देन 1 ये आ जाएगा आपके पास, ओके, तो वी आर एडिंग 19, सो इट विल बी अराउंड 39 मिली सेकेंड, 2 और 1 3 और 9 तो 39। सो दिस विल बी द फाइनल रिस्पॉन्स टाइम। बट ये ना आपका मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम है, एक रेंज निकालनी होती है ना हमें कि मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम इतना होगा, तो मैक्सिमम भी निकलेगा, तो एक रिस्पॉन्स टाइम मैक्सिमम भी निकलेगा, राइट, मैक्स। तो उस मैक्स में क्या चेंज होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो ये तो आपका चेंज नहीं होगा प्रोसेसिंग टाइम, क्योंकि ये प्रोसेसिंग टाइम आपका डिफरेंट है, ये आपका सर्वर की तरफ का पार्ट है, तो ये इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। जो चेंज होगा वो फ्रंट वाले पार्ट में होगा। मैं फ्रंट और बैक से भी क्या बोल रहा हूँ उसका भी मतलब बता दूंगा। तो आपका बेसिकली यहाँ लेटेंसी टाइम में चेंजेस आएंगे। तो जो आपका लेटेंसी टाइम में चेंजेस आएंगे ना, उसके लिए आपको इट विल कम अराउंड, वी आर टेकिंग 120 हियर ना, सो इन दैट केस यू विल हैव टू टेक अराउंड 260 बट अराउंड 201.5। तो बस आप अपनी एक सेम कैलकुलेशन रखो, क्या करना है बस आपको इस 120 की जगह 201.5 करना है, प्लस ये सेम रहेगा पूरा, प्लस ये भी पूरा सेम रहेगा। तो मैक्सिमम वाले केस में जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा करीब करीब 12240.2 मिली सेकेंड, ये आपका मैक्स होगा, लेटेंसी मैक्स। तो दिस इज मिनिमम एंड दिस इज मैक्सिमम। तो बस अब आप इस वैल्यू को ऐड कर लो प्रोसेसिंग टाइम में, मतलब सॉरी लेटेंसी टाइम में आप इस वैल्यू को ऐड कर लो विद दिस प्रोसेसिंग टाइम। तो दिस विल गिव यू, जो प्रोसेसिंग मैक्सिमम हो जाएगा इट विल कम अराउंड 12250.39 मिली सेकेंड। तो ये हमारी टाइमिंग्स होंगी मिन एंड मैक्स, रिस्पॉन्स टाइम मिनिमम एंड रिस्पॉन्स टाइम मैक्सिमम इन केस ऑफ अपलोड अ रिक्वेस्ट। तो जो रिक्वेस्ट आप अपलोड करोगे उसके केस में रिस्पॉन्स का मिनिमम टाइम ये होगा और मैक्सिमम टाइम ये होगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशंस थी हमारी अपलोड के केस में, ठीक है। सो नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द डाउनलोड रिक्वेस्ट। तो डाउनलोड रिक्वेस्ट की भी देखते हैं। सो द इन अ सिमिलर फैशन द पोस्ट रिक्वेस्ट हैज इट साइज 2 KB अराउंड। तो इन अ सिमिलर फैशन यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट का भी अपना कुछ साइज होता है विच इज़ 1 KB, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग एनी एंड ये 1 KB भी सिर्फ आपका हेडर्स का होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें भी कुछ हेडर्स इन्वॉल्व होते हैं, बट वी आर नॉट सेंडिंग एनी बॉडी और समथिंग एल्स। तो उस केस में आप रिक्वेस्ट का साइज अज्यूम कर सकते हो दैट इट इज़ 1 KB। तो गेट रिक्वेस्ट का जो टोटल साइज है दैट इज़ 1 KB, और जो रिस्पॉन्स हमें मिलेगा उसका साइज तो 10240 है, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग कि हम जो जो हम रिस्पॉन्स जो हमें चाहिए एट द एंड वो एक इमेज होगी या एक फाइल होगी वॉटएवर, जो कि 10 MB की होने वाली है, ठीक है। तो हमारा रिक्वेस्ट का जो साइज है वो है 1 KB, बिकॉज देर आर सम हेडर्स ओनली, एंड रिस्पॉन्स का साइज जो है वो हमारी पूरी फाइल है विच इज 10240 KB, राइट, ग्रेट। और डिक्रिप्शन टाइम के लिए फिर से वी आर अज्यूमिंग कि अगर 10 MB की फाइल के लिए वी हैव टू अज्यूम दैट इतना हमारा टाइम बढ़ेगा, ठीक है, डिक्रिप्ट करने के लिए। तो लेट्स see some calculations for this also. So again everything is same. Again we will calculate the response time and latency time. Response time अभी भी formula same है, latency time plus processing time. But latency time में इस बार क्या होगा, यहाँ पे base time रहेगा, यहाँ पे तुम्हारा RTT get हो जाएगा, बिकॉज इस बार हम राउंड ट्रिप टाइम गेट रिक्वेस्ट का निकालेंगे ना कि पोस्ट रिक्वेस्ट का। तो गेट रिक्वेस्ट के केस में कितना RTT टाइम लगेगा हमें वो निकालना है, एंड देन RTT गेट को निकालने का फॉर्मूला आपके पास ये RTT बेस टाइम प्लस 0.4 एंड देन द रिक्वेस्ट साइज, राइट। सो नाउ लेट्स सी द कैलकुलेशन फॉर डाउनलोड रिक्वेस्ट ऑल्सो। तो मैं सीधा लेटेंसी टाइम निकालता हूं पहला, क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम तो अभी भी ऑलमोस्ट फिक्स रहेगा, प्रोसेसिंग टाइम में कोई डिफरेंस नहीं है, 10.191 मिली सेकंड ही रहेगा, बिकॉज वो सर्वर के पार्ट है। हम लेटेंसी टाइम निकालते हैं, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लेटेंसी यहाँ पे मैक्स निकाल लेते हैं, ठीक है, या पहले मिन निकाल लेते हैं, ठीक है, लेटेंसी मिन निकालते हैं एंड देन यहाँ पे लेटेंसी मैक्स निकाल लेंगे। तो लेटेंसी मैक्स मिन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, पहले तो टाइम बेस टाइम चाहिए। तो इस केस में जो बेस टाइम लग रहा है वो 120.5 लग रहा है, जो कि हमने पहले भी देखा था कि बेस टाइम फिक्स होता है। यहाँ पे इस बार आपका RTT का जो बेस टाइम होता है वो डिफरेंट होता है गेट रिक्वेस्ट के केस में। तो RTT का जो टाइम होगा दैट वुड बी 70 RTT बेस, दिस इज नथिंग बट RTT बेस, ठीक है, और दिस इज नथिंग बट लेटेंसी बेस टाइम। So this is latency base time 120.5 plus RTT base time. Now this will be added to 0.4 into size of request. Size of request is nothing but 10242, ठीक है। यहाँ पे आपका टोटल साइज ऑफ रिक्वेस्ट है 10242, ठीक है। और देन आपके पास इधर जो आएगा लास्ट में जो डाउनलोड का आपका जो टाइम ऐड होगा दैट वुड बी अराउंड एंड दैट वुड बी अराउंड 0.4। आप वो डाउनलोड का टाइम भी ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो लाइक आई डोंट नो बट व्हाट वुड बी इट्स कैलकुलेशन, बट लेट्स से कि ये इट विल कम अराउंड, लेटेंसी मिनिमम हम निकाल रहे हैं, तो लेट्स से इट विल कम अराउंड 4287.3 मिली सेकेंड, राइट। जस्ट डू द कैलकुलेशन, मे बी इट कैन बी रॉन्ग ऑल्सो,
maybe some numbers up and down, but see, this is an approximate number that 4287.3 will be the minimum latency. In a similar fashion, we can also calculate the maximum, response time. So maximum latency will be, latency max would be 201.5 plus 70, then plus 0.4 into 10242, the total size plus the download size, and then thereby you can actually calculate. So maybe let's say it will come around 4368, maybe point something, right? And here also, like, I'm writing point something, right? Point something. Okay, this is millisecond approximately, right? So latency max and minimum we have calculated. Now we have to calculate the response time only. So now response time is nothing but, while calculating response time, you will add this to plus 10.191. This will give you response time, response mean. Similarly, to calculate response max, you just have to add plus 10.191 because that's the processing time, overall processing time. And the final number that you can get maybe 4297 point something, and here you may get 4378 point something, right? Milliseconds. So these will be the calculations to calculate, like, for your downloading a request, right? So I hope you are clear with this. So this is the summary of whatever we have discussed. So let me tell you one more thing. The time from this request to this, it is called the latency time, right? And the time taken from this to this is called processing time, right? And then finally we call it as latency time plus processing time is actually equal to response time, right? So from client till API gateway, this is known as latency, and from API gateway to till this is known as, processing time. So that's how, the things actually are known as. Okay, so these are the, like, summary that from get and post, maximum and minimum latency from client to API gateway, and then from API gateway to, final destination, that is 10.191 millisecond, and the overall response time is, I have written over here, so you can just go through it, right? I hope this will make sense. So now let's talk about the optimizations and trade-offs. So the first optimization is, we can see, is that large file upload. So right now, like, suppose you are uploading a 10 MB file, so it will be uploaded simply, there will be no problem, right? But instead of 10 MB, let's say you are uploading 1 GB file. So now if you are uploading 1 GB file in one go, in one go, so there is a high probability that this will fail in between due to network problem or whatever. Uploading can fail. अगर ये अपलोडिंग फेल होता है तो उस केस में, इफ दिस अपलोडिंग इज फेलिंग, तो उस केस में क्या करोगे? फिर आप पूरा 1 GB का फाइल लोगे एंड देन पूरा 1 GB का फाइल आप री अपलोड करोगे, तो इससे कोई फायदा नहीं है, इससे यूजर भी बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहेगी. रादर देन व्हाट शुड वी गेट इज, हमें कुछ ऐसा ऑप्शन मिलना चाहिए कि अगर हमारा अपलोडिंग फेल हो गया है तो जितना पार्ट कवर हो चुका वो वहीं का वहीं पे रहे, एंड देन फिर वहां से मेरे को रीस्टार्ट करने का, मतलब कंटिन्यू करने का ऑप्शन होना चाहिए, राइट? तो यार यहाँ पे हमारे पास एक बेनिफिट है कि हम ना HTTP 1.1 यूज़ करते हैं, राइट? HTTP 1.1 यूज़ करते हैं, और उसके अंदर एक मैकेनिज्म होती है, क्योंकि ये ना बाइट रेंज अपलोड को करता है, प्रोवाइड बाइट रेंज को. तो मतलब HTTP 1.1 जब आप यूज़ कर रहे हो तो आप फाइल्स को अपलोड कर सकते हो बाइट रेंजेस में, ठीक है? और ये बाइट रेंजेस जो होती है ये फिर बाद में असेंबल हो सकती है जब आपका अपलोडिंग कंप्लीट हो जाएगा, राइट? और बीच में अगर मान लो अपलोड कहीं इंटरप्ट होता है, अगर मान लो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये आपकी टोटल फाइल थी, ठीक है, ये कुछ पार्टीशन है बाइट रेंजेस, ये कुछ पार्टीशन है, ये कुछ पार्टीशन है, ये कुछ पार्टीशन है, मान लो इतना सेंड हो चुका और फिर इतना भी सेंड हो चुका, यहाँ पे इंटरप्शन है, यहाँ पे इंटरप्शन आ गया, तो इतना सेंड हो चुका, तो हम क्या करेंगे ना, हम इस रिक्वेस्ट को ही भेजेंगे पुट रिक्वेस्ट में, अपडेट रिक्वेस्ट में, क्योंकि अब आप अपडेट कर रहे हो, अब आपकी नई रिक्वेस्ट नहीं है, यू हैव टू कंटिन्यू विद द सेम रिक्वेस्ट. तो आपको उसलिए क्या करना पड़ेगा, पुट रिक्वेस्ट करना पड़ेगा. उस पुट रिक्वेस्ट में आप कुछ वैल्यूज को भेज दोगे जो कि बताएगा कि हमारा कौन सा पर्टिकुलर फाइल को हमें कंटिन्यू करना है, अपलोड करना, ठीक है? तो उसमें आप क्या कर सकते हो, बेसिकली आप रिक्वेस्ट का हेड भेज सकते हो, ठीक है? रिक्वेस्ट का हेड भेज सकते हो, और जो भी लास्ट चंक रिसीव किया था सर्वर ने वो वहीं से आपका कंटिन्यू कर देगा, ठीक है? उससे नेक्स्ट चंक से स्टार्ट कर देगा वो जहां से हमने छोड़ा था उसको, ठीक है? तो HTTP 1.1 का हम ये बेनिफिट लेंगे जरूर, तो ये ऑप्टिमाइजेशन करेंगे. अगर आपने मतलब 1.1 को सिंपली हम यूज नहीं कर रहे, तो 1.1 जो हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है वो हमें ऑप्टिमाइजेशन लाने हैं अपने सिस्टम के अंदर, देन ओनली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस, राइट? So that is one case where we can optimize our system. Next is multi-file upload. तो multi-file upload का केस क्या है? तो multi-file upload में देखो सिंपल सी बात है, HTTP 1 although सपोर्ट करता है HTTP पाइपलाइनिंग को, लेकिन ये API की परफॉर्मेंस को हमारी अफेक्ट कर सकता है जब हम डाउनलोड कर रहे होंगे मल्टीपल फाइल्स को, ठीक है?
तो मल्टीपल फाइल के अपलोड या डाउनलोड करने केस में हमारी एपीआई की परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकती है यूजिंग HTTP 1.1, राइट। तो इसमें क्या होगा ना कि एक प्रॉब्लम होती है HTTP 1.1 में कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप कुछ तो लार्ज फाइल्स को भेज रहे हो, ठीक है, और कुछ आप स्मॉल फाइल्स को भेज रहे हो, ठीक है, और अगर गलती से इसने प्रायोरिटी लार्ज फाइल को दे दी तो क्या होता है ना कि जब तक लार्ज फाइल आपकी अपलोड नहीं हो जाएगी ना, आपकी स्मॉल फाइल अपलोड नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से डिले होगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लेक्सिंग नहीं होती ना यहाँ पे। जब तक एक रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं होगी दूसरी रिक्वेस्ट आपको शुरू नहीं करेगा, है ना। तो स्मॉल फाइल को वेट करना पड़ेगा, डिले हो जाएगा, और इसको हम बोलते हैं HTTP कंटेंट ब्लॉकिंग, राइट। इस प्रोसेस को कहते हैं HTTP कंटेंट ब्लॉकिंग, क्योंकि HTTP आपकी कंटेंट को ब्लॉक करता है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं ना, इंस्टेड ऑफ HTTP 1.1 बिकॉज इट मे अंडर परफॉर्म इन सम ऑफ दी सर्कमस्टांसेस, तो रादर देन वी कैन यूज इज HTTP 2.0। तो ये एक ऑप्टिमाइजेशन है हमारे इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, तो वी कैन यूज HTTP 2.0 ऑल्सो। द थर्ड वन इज नोटिफिकेशंस। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दी, दिस इज एक्चुअली नॉट इम्प्रूवमेंट बट दिस इज सम काइंड ऑफ some other requirement. तो लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ वी वांट दैट एज सून एज किसी यूज़र की कोई फाइल अपलोड हो गई है ना, या फिर कोई फाइल डाउनलोड हो गई है, तो वी वांट टू नोटिफाई द यूज़र। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन हैव सम नोटिफिकेशन मैकेनिज्म। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पब सब सिस्टम को लगा सकते हैं। पब सब इज नथिंग बट पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल, जिसमें हम क्या करेंगे कि एज सून एज किसी भी यूज़र की अपलोड या डाउनलोड हो गई है फाइल, तो हम एक उसमें नोटिफिकेशन को पुश कर देंगे, ठीक है, पब सब के अंदर। और जैसे ही फिर यूज़र अवेलेबल होगा, मतलब जैसे यूज़र विल बी देन एबल टू सब्सक्राइब, बिकॉज यूज़र विल हैव सब्सक्राइब टू दिस पब सब, तो यूज़र के पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, ओके योर फाइल हैज़ बीन अपलोडेड और डाउनलोडेड लाइक दिस, ठीक है। तो दिस आर द ऑप्टिमाइजेशंस दैट वी कैन एक्चुअली हैव इन आवर सिस्टम। सो यार दिस इज ऑल अबाउट योर कंप्लीट फाइल डिज़ाइन, एंड आई होप मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक सिंगल डिज़ाइन में सिखाई होंगी। In further videos also we will talk about lot of designs, but till then like you have to make sure that you complete everything, you try to learn everything जो भी हमने नई नई चीज़ें पढ़ी, be it HTTP or whatever, you need to learn everything. So that's it from my side for this video, and I'll see you in the next video. Till then, bye bye.